ठीक है। One question all of you are asking me again and again yesterday is regarding future of Home Minister Shri Anil Deshmukh. And I think I told him I will be able to brief you tomorrow, that is today. So it's correct, no? Yes, sir. Now, I tried to collect the information about exactly the allegation which was made by former CP against Home Minister. And whatever the period which he said, what exactly happened in that period, that also I tried to collect information. If you see the former commissioner's letter, he mentioned in mid-February he was briefed by certain officers that they got such and such instruction from Home Minister. Correct? Now I got a documentary evidence from 5th February to 15th February. Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. And this is the name of hospital. And this hospital has given certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh, aged 70 years, was admitted in the Alexis multi-specialist hospital in Nagpur under my care from 5th February to 15th February for mild COVID-19 illness. So going to main issue, there is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. In that period, he was house quarantined. These 2 days I am deliberately giving because former CP's letter, he suggested regarding collection of money, fund, everything. The Honorable Home Minister, around the mid-February, called Sri Vadhe at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. Now, second issue, what CP is saying, he was briefed same day by that low-level officer, such and such conversation was between him and Home Minister.
same day, he mentioned same day Vijay was briefed by, so-called briefed by Home Minister, same day, that is former CP's version. Another issue which I just think this is not anybody's raised is that March 3rd week or 2nd week, he mentioned in his letter he has briefed CM, Deputy CM and me. And I said it is correct that he met me. I don't know about CM and Deputy CM. I asked them, they said yes, but he met me, that is more important. So this was in 2nd week of March. See, suppose in mid-February, CP got this type of information. So why he was waiting up to 2nd week of March for whole month? This is an important issue. It was his duty, at least he should say something in writing. At least it was his duty to register such and such things to certain record. But that is not done. He has disclosed all these things when he was about to transfer or he transfers. But all these things, I am not going in detail, it's not my job. Ultimately, whoever will inquire, they will go in detail. Yesterday I also suggested, for sake of inquiry, somebody should be senior most officer and whose reputation is above all should take this responsibility. And I suggested, this is suggestion. I have not discussed, I also said I have not talked. Name of Sri Rivero, but Rivero has taken public stand. He is not going to take any responsibility so that this is not there. What I honestly feel, important issue is what was the main case? Main case was certain items were kept in particular vehicle, somewhat near to house of Sri Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept this vehicle, who owns this vehicle. And it looks like that they come to conclusion, or at least they got the information, may not be confusion, but information, this particular jeep was in the custody of one deceased Hiren. And one fine morning we read Hiren was assassinated. Now the investigation might have started here. What was the role of Hiren in this jeep? Is it correct that this was with him for many months? Is it correct that his jeep was taken from him by some police officer? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, ATS Bombay has yesterday or today announced they have arrested 2 persons. In connection with assassination of Hiren. So I think एक तो बात साफ हो रही है कि हिरेन की हत्या किसने की। हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को, एटीएस को जो लगते हैं,
ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these two gentlemen has done this, whether somebody has told him. That is in investigation process. Facts will come today, tomorrow, day after tomorrow, can't say, but something will happen. But I am happy about one thing. The main case was not the allegation or anything from CP. Main case was certain material near Mr. Ambani's house, A, that was kept in Jeep, B. Then the Jeep was custody of so and so, C. And ultimately, the Jeep who was claiming he was the owner of on his possession, he was assassinated. And ATS Bombay had reached and arrested those who were involved in assassination. So, real case was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire investigation, while some people might be saying about something happened between him and Home Minister. Home Minister was asking such and such thing. Achha, when they made a statement, the Home Minister was asking, is there any evidence? Is there any actually cash transaction was given? Any allegation? Just vague allegation has been made, and I honestly feel the investigation which is reaching at pinpoint, there was effort to divert that investigation, and now the truth is coming. Decide on the fate of the Home Minister. So is the meeting to be held today? Any decision that you will be arriving at today? Since yesterday you said that you will. Yeah, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also says that the entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation question doesn't arise. सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है, तो क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular phase he was in Nagpur, so question doesn't arise. फडणवीस सिंग यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे का? अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणी टाकणं, सरकारला अडचणी टाकणं हे केलं जाते का? राजकीय षडयंत्र वाटतं? इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रॉस एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद
ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकद नहीं रही। सर शिवसेना का कहना है सर तुम्ही अर्ध सत्य सांगत आहात, तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही. इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केलाय की ह्या आधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले, ते आपण लपवतात. हे तुमच्यावरच आरोप केलाय. नहीं, माझा त्याच्यात म्हणजे माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सत्य है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। सर अनिल देशमुख अब इस्तीफा नहीं देंगे सर, ये क्लियर है। सर शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो हैं वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि परमवीर सिंह के इशू पे? भाई मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देख सकता, इनके बारे में कुछ बातें इधर उधर सुनने के लिए आती थी, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। जिस दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे, इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री हैं, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार चल रही है, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है? मैंने कल ही उनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक सुनिए एक बार पूरे होने देना। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आएगी, आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम है। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है? नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट सर मतलब करना आपको ठीक लगता है नहीं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है? सर कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे, कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। नहीं तो बात जांच, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर जैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड वो सीएम साहब को हो सकती है, तो उनका अधिकार है। सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद का कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उसमें पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोजिव मिले थे, उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट दी अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कमलनाथ आपल्याला काल भेटले, काँग्रेस बरोबर आपली कोण भेटले? कमलनाथ काल आलेले आपल्याला भेटायला. कमलनाथ काँग्रेसचे नेते. नहीं, ते दुसऱ्या कामात ऐसा काही संबंध नाही। काँग्रेसची आपल्यावर चर्चा नाही, झाली. कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही, त्यांचं कारण नाही। मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नाच्यासाठी ते माझ्याकडे आले काँग्रेसची चर्चा नाही, कोणाची चर्चा नाही झाली। परमवीर सिंग यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे, याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचक नाही असं माझ्या वाटत मते
याची दो स्टँडर्ड आहे एक असं म्हटलेलं आहे की अनिल परब सर, ज्या प्रकारे ठीक है पवार सर, आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी। आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, पे आज जिम्मेदारी- मैं वही कह रहा हूँ हाँ, कल, क्योंकि वो जयंत मुंबई पाटिल से कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं अरे होगा। सुनिए, कल हो कह देते, मैं आज कल नहीं कहता था, आज मैं कह रहा हूँ जी, क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन थी, या वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, और इसलिए मैंने कल, ये सीरियस इशू है और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था। मैं आज आई एम एब्सोल्युटली clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct. सर मीटिंग तो 4 मार्च को हुआ था। तो इस्तीफा नहीं The meeting on 4th of March, and then he said, He mentioned in sir, there are two references. mid February. I read that out for you from the letter. He mentioned mid February. Same day, concerned officers briefed him that he has said from mid February till ये 16 मार्च तक वो चुप क्यों बैठे थे? सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। ये इन्होंने लेटर में इतनी सारी बात किए या कुछ डिमांड की, अपोजिशन का नेता का ये काम है, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये कल मैंने कहा था, आज भी मेरा कहना वही है। राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ते प्रामुख्याने सतत वारंवार करतात त्यावर आज काय प्रकाश आंबेडकर सर राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. अरे, साधारणतः ज्यांच्या पाठीशी लोक आहेत, संसदेत लोक आहेत, विधानसभेत लोक आहेत, अशांची मताचा साधारणतः आम्ही कॉग्निशन घेतो. पवार साहब जो अभी सवाल पूछ रहे थे मौसमी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के एलिगेशंस लगा के। सर ये फरमवीर किसके बेहस पे कर रहे हैं? मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं. That's why I will not take any wild allegation unless I got something. पवार साहब, सर Not going to meet, there is no politics about it, and the question should be answered, didn't Anil Deshmukh meet Sachin Waze many times? Basically, I don't know about what he said, but what he said, because I told that he met me. Mr. Pawar, I have not said about others. I have not said whether he met anybody in Delhi or anything. पवार सर, अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस Speaking, huh? अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा की वीडियो है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को। एक सेकंड में, अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ठीक है ना? तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास अंडर होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास ऑफिशियल सर आप ये अनिल खुद की खिड़की है, कौन सी खिड़की है, किसको मालूम? सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे पास पवार 15 साहब, do you want to see it? I'll show it to you. This is Anil 15 Deshmukh's फरवरी का Twitter page. सर्टिफिकेट है. Sir, this is Anil Deshmukh's नहीं, Twitter ठीक है, page if you want to see. I am giving this. That's fine, sir. What we are just showing it to you. ची प्रेस कॉल होती. अच्छा, I was told this is a video conferencing face statement. What statement? VC through किया है. ये देखो घर पे खड़े बैठे घरे में बैठेंगे ना वीसी में आदमी घर पे ही बैठता है। लग रहा है। वीडियो सर आईडी, सर माइक आईडी लगी है इसमें। सर माइक आईडी सारे नहीं कैसे हो रहा है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो कहते ये सारी माइक आईडी ये वीसी की बात है, जो बताया आपके सामने बताया, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता. पवार साहब ये और इम्पोर्टेंट गोष्ट ये नहीं है. इम्पोर्टेंट गोष्ट ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3. ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं
ये बात ठीक नहीं, इसमें मुझे कहना सर लेकिन पवार साहब आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इनफ इज इनफ। सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब थोराट और अशोक चौहान। उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इस्तीफा भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपके सहयोगी दल का ये बयान आया है, जो महाराष्ट्र के इंचार्ज में ऐसे पार्टी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की। वैसे उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मुझसे बात हुई तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है, और किसी ने कुछ किया होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना। और साहब ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी भी कुछ लोग चाहते हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दें, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। Sir, I know you reverted in this press conference शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी? संजय राठोड